Okay, so I have started the recording, and let me also share the screen with you all now. All right, so I have shared the screen as well. Now, last time what we did is we discussed about how to write a Python statement. So basically what we did was we wrote some statements into the idle. Let me start idle, by the way. So we wrote some statements into the idle window, which was the interactive mode, as I say. Okay, this was the interactive mode in which we actually executed the statements. And then I also explained to you how we can, let me open the hello.py file that we used last time. All right, so this is our hello.py file. Let me just quickly resize it so that I can put them side by side. Okay, तो क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ and I'll keep the Python code here, and this is our, इसको भी थोड़ा resize करना पड़ेगा. This is why I'll keep them. All right, so this is what we actually saw the last time. We spoke about how single quotes and double quotes doesn't matter. You can use any of them. And then we declared a variable. We stored some value into the variable, and then we printed that variable as well, correct? So these are the things that we discussed last time. And we also, I touched upon the point where I said that, okay, when you say x is equal to 10, basically it is storing this number 10 in this variable x. And we also spoke about what a variable is. तो last time हमने देखा था कि variable क्या होता है, वो हमने देखा last time, all right? तो आज उसके continuation में हम लोग क्या करने वाले हैं? What we are going to learn is we are going to learn what is a data type. Okay, because data type is kind of the base from where any programming language के basic components start. Okay, because you are going to work in any language, any program, कोई भी programming language में आप सीखो, जब भी आपको program लिखना होता है, fine, whenever you want to write a program, you will need variables. Now what is a variable? In plain simple terms, variable is a storage. जैसे आपको अगर इमेजिन करना है तो आप घर में जो स्टोरेज होते हैं ना, डब्बे होते हैं अलग अलग टाइप के किचन में, या फिर हमारे ड्रॉवर्स होते हैं, वो सब स्टोरेज टाइप है. तो आप वैसे इमेजिन करो उनको. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं स्टोरेज. ठीक है, तो और वो जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम लोग कुछ वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे डब्बा होता है अपना, तो डब्बे में या तो हम कुछ भी वी कैन कीप सम स्वीट्स इन अ टिफिन. We can have a plastic box in which we can keep some books. That also becomes a kind of a variable. मतलब storage हो गया ना वो. या फिर we can have one more drawer in which we keep all our cables and chargers and USB cables and all those kind of things. So that is again one kind of storage. All right. So when we are talking about a storage, basically what we are looking at is we are looking at a place where we can store some value. ऑलराइट, तो हमको ये वैल्यू कहीं पे तो स्टोर करनी है, तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि यार मैं वैल्यू को कहाँ पे स्टोर करूं. ऑलराइट, एंड दैट प्रिसाइजली इज नथिंग बट योर वेरिएबल. ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएबल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएबल लाइक x इज इक्वल टू 10. अब जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जब यही चीज हमको सी लैंग्वेज में करनी होती है तो हमको डिक्लेरेशन कैसे करना पड़ता है. और मैंने ये भी बताया था कि व्हेन वी डू इट इन पाइथन, तो वी डोंट हैव टू वरी मच, बिकॉज पाइथन में डेटा टाइप जो होता है ना वो बताना ही पड़ता ही नहीं है हमको. ओके, सो रादर ऐसा भी नहीं है कि क्या वो ऑप्शनल होता है डेटा टाइप. मुझे अगर बताना है तो मैं बता सकता हूँ क्या? तो सॉरी, आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज पाइथन डजंट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप. Okay, what Python says, Python keeps it simple. Python says that okay boss, देखो तुमको अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में, तो तुम सीधे सीधे मुझे बोल दो कि दिस इज द वेरिएबल. ऑलराइट, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द वैल्यू. दैट्स इट. यू डू नॉट टेल मी व्हाट शुड बी द टाइप. ओके, सिंपल सी बात है ना. आप ऐसे सोचो, मैं अगर आपको बुक देता हूँ बुक स्टोर करने के लिए,
ठीक है ना। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना कि अरे ये बुक ना तू बुक वाले बॉक्स में स्टोर कर, वो तो आप समझदार हो ना, आपको तो समझ में आना चाहिए। मैंने अगर बुक दी है तो आप बुक का जो शेल्फ है उसी में स्टोर करोगे। आर यू गेटिंग दिस? मैं अगर स्वीट्स देता हूँ, गुलाब जाम देता हूँ, तो आप कहाँ पे टिफिन में स्टोर करोगे, वो जाके आप ड्रॉवर में या शेल्फ में नहीं डालोगे ना उसको, करेक्ट। सो व्हाट पाइथन डज इज पाइथन हैज दिस fundamental that you will not mention the types, or more precisely what I'll say, you will not mention the data types. What you will do is you will only have variables and store values in them, and Python will automatically figure out, okay, Python will automatically figure out what is their data type. And that's what we are going to see today. All right, because data type is something that will eventually be required no matter what type of software you create. आप कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाओ, आपने कल को जाके मतलब गेम बना दी, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर बना दिया, या कुछ एप्लीकेशन बना दिया व्हाट्सएप जैसा, कोई भी हो, सब एप्लीकेशंस में, बिकॉज दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर, in all this software essentially what you need is you need variables to store the values. उसके बिना काम हो ही नहीं सकता हमारा. All right, so this is a very important thing for us to know. All right, so before we actually move ahead, let me open MS Paint for you guys and let me uh, show you some concepts here. Okay, before that let me just check waiting में कोई नहीं है ना? हाँ नहीं है. All right, so what we are essentially going to discuss is we are going to discuss a data type today. कि what is a data type? और सब data types नहीं discuss करने वाले हैं हम, only to start off with. So we are going to discuss what is a data type. अब data type का मतलब क्या होता है? What do you mean by a data type? Simple सा है. Data type का मतलब है the type of data. What is the meaning of data type? उसका मतलब होता है the type of data, मतलब आपके पास जो data है वो कौन से type का है. तो कौन कौन से अलग अलग टाइप हो सकते हैं? तो देयर कुड बी वेरियस टाइप्स. ऑलराइट, द वंस दैट वी नो precisely, there could be various types. For example, if I store a value 10, okay, मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, so it will be easier for you to understand. All right, so let's say in this I store some value. Okay, अब मैं ये एक वेरिएबल नहीं है, ये एक कैटेगरी है मेरा. तो इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से 10, फिर दूसरा एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से 45, फिर तीसरा एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से 100. ऐसे मैं वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकता हूँ. ऑलराइट, सो दिस ये कौन से टाइप के वैल्यूज हो गए? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो व्हाट विल वी कॉल देम? वी कैन कॉल देम दैट दीज आर इंटीजर वैल्यूज. बराबर ना, ये इंटीजर से ना, नंबर से ना, ये इंटीजर नंबर 10, 45 वगैरह वगैरह. ठीक है, अब हम लोग जाके लेट्स से मैं एक दूसरा, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैं अलग टाइप के वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ. तो वो वैल्यूज कैसे दिखेंगे? दैट दोज वैल्यूज कुड बी समथिंग लाइक, लेट्स से पाई की वैल्यूज 3.142 एक वैल्यू है मेरे पास, फिर दूसरा मेरे पास वैल्यू है 89.45, फिर तीसरा भी एक वैल्यू हो सकता है 1000.75, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, तो ये जो हो गए ये थोड़ा अलग टाइप का डेटा है, करेक्ट. तो इसको क्या बोला जाता है? लेट्स से वी कॉल देम एज डेसिमल प्लेस वाले. सो डेसिमल वैल्यूज हो गई है, करेक्ट. व्हाट आर दिस? these are decimal values. okay, all right. और फिर लेट्स से हमारे पास और एक कैटेगरी है. ओके, और एक कैटेगरी है जिसमें मैं कुछ ऐसे वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ. अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि जिसमें मैं टेक्स्ट स्टोर करने वाला हूँ. टेक्स्ट जैसे क्या होता है ना, इंडिया फॉर एग्जांपल, यूएस, या लेट्स से आईपीएल, सॉरी आईपीएल. ओके, सो ये मैंने क्या कर दिया, ये अलग टाइप के वैल्यू स्टोर कर दे. तो ये वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट विल वी कॉल देम? वी कॉल देम एज टेक्स्ट वैल्यूज. ऑलराइट, सो दीज आर इंटीजर वैल्यूज, दीज आर डेसिमल वैल्यूज, दीज आर टेक्स्ट वैल्यूज. और ऐसे और भी रह सकते हैं. दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट. ऐसे और भी हो सकते हैं, बट प्रिसाइजली दीज आर द कॉमन वंस की पॉइंट डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यूज वाले हैं, या फिर टेक्स्ट वैल्यू है, या फिर इंटीजर वैल्यूज है. ऑलराइट, सो ये जो कैटेगराइजेशन इनका अगर मुझे करना होगा ना, if I have to categorize them typically, so these are more like standard types. What are they? They are standard data types.
ऑलराइट, अब ये जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं ना गाइस, दी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स यू विल फाइंड इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप ऐसे टाइप का डेटा स्टोर कर पाओगे। ओके, नाउ नॉट ओनली दैट, अगर आपको कल को जाके आपका खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट करना है, ओके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से आपको एक बुक का डेटा स्टोर करना है, बुक, तो आपको एक खुद का डेटा टाइप बनाना है बुक करके। अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो फिर आप सोचोगे यार बुक मतलब कौन से टाइप की वैल्यू जाएगी बुक में, क्योंकि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यार बुक की वैल्यू स्टोर करो, तो आप क्या स्टोर करोगे, सोचो ना। इफ आई टेल यू स्टोर द वैल्यू ऑफ अ बुक, देन यू विल हैव अ पजल्ड फेस, राइट, यू विल हैव अ क्वेश्चन कि अमित सर बुक स्टोर करना मतलब क्या बोल रहे हो आप, मतलब बुक का नाम स्टोर करें, बुक की प्राइस स्टोर करें, बुक का टाइटल स्टोर करें, बुक के ऑथर का नाम स्टोर, मतलब क्या करे, क्या स्टोर। ऑलराइट, तो एक चीज स्टोर करके काम हो ही नहीं सकता, राइट, हमको बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर करनी पड़ सकती है। जैसे हम लोग उसका नेम स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट, फिर उसका प्राइस स्टोर कर सकते हैं, फिर ऑथर का नाम स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स आई कैन स्टोर। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो नेम ये कौन से टाइप में जाएगा, तो ये नहीं है कि नेम इज नथिंग बट आवर टेक्स्ट वैल्यू। प्राइस अगर हम बोलते हैं तो इट कुड बी अ इंटीजर वैल्यू, और ऑथर का नाम बोलते हैं तो फिर से वो टेक्स्ट वैल्यू हो गई, करेक्ट। सो अल्टीमेटली कल को जाके हमको हमारा खुद का डेटा टाइप भी बनाना होगा ना बुक नाम का, तो उसमें भी हम लोग अंदर स्टैंडर्ड वाले टाइप से यूज करके उसको बनाते हैं। तो डोंट थिंक दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप, आई मीन सी वी कैन, बिकॉज अगर आपको बोलना है ना तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको, ये मैजिक नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड थिंग्स। इसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड। ओके, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब अगर आप अच्छे से इसको देखो ना, मे बी जूम करके थोड़ा सा, तो समझ में आएगा कि अरे इसमें क्या है, ये तो बुक नाम दिया है सिर्फ, इसके अंदर तो सब स्टैंडर्ड डेटा टाइप से यूज किए। हाँ तो ऐसे ही होता है। अगर नाउ इफ यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड लाइक सी लैंग्वेज, you know what a structure in C language is. If you come from a background like C++, you know what a class in C++ is. और अगर आपको जावा आता है तो जावा में भी आपको पता है आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाता है उसमें। लेकिन वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के लिए अंदर आप जो उसमें वैल्यू स्टोर करते हो वो तो स्टैंडर्ड ही होते हैं ना, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट वैल्यू होती है, इंटीजर होता है। Are you getting this? So ultimately, when you are talking about data types, just remember one simple thing. When you are talking about data types, then there are some standard data types and there are some user defined data types. All right, so today we are going to discuss the standard ones कि python में अगर हम standard data types देखने जाएंगे तो कौन कौन से हैं। all right, so let me just quickly make a list of that. So I say here python standard data types. All right, now when I'm talking about a python standard data type, so I can just list them. okay, ये generic category है इसका, and we will see. तो इसमें एक generic category आता है numbers करके। अब numbers में there could be many things, like there could be integer number, there could be a floating number, there could even be a complex number actually. जो maths में complex number होते हैं वो भी Python support करता है, because Python heavily supports processing of data. okay, mathematical calculations वगैरह बहुत heavily supported है Python में, तो it supports a complex number as well. फिर दूसरा एक common type जो हमको हमेशा लगता है which is nothing but a string, जो हो जाता है text, जैसे hello world हो गया, user का name हो गया, those kind of things. Then we also have few interesting data types, which is a list, then we have a tuple, then we have a dictionary. okay, and actually मैं काम करता हूँ ना, इसको 3, इसको 4, 5, 6 बोल देता हूँ, और एक मुझे ऐड करना है यहाँ पे 3, जिसको मैं बोल देता हूँ बूलियन। तो बूलियन में एक्चुअली होता है या सिर्फ ट्रू या तो फॉल्स, ये दो ही वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी एक टाइप है। So this is the generic category of what Python supports as data types. All right. Now यहाँ पे what you have to understand is ये जो तीन है ना, list, tuple और dictionary, ये थोड़े से अलग है लेकिन ये बहुत पावरफुल है।
these are very powerful data types. Okay, lists is one of the thing that is so heavily used in Python. In fact, जैसे हो जा एक सिंपल बात बता देता हूं मैं आपको. अगर कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है और उसको पूछते हैं ना कि व्हाट इज द पावर ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन सी लैंग्वेज, ओके, तो मतलब जो डरते हैं वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर वो बोल देते हैं ना कि सर पॉइंटर्स इज द बेस्ट थिंग ऑफ सी लैंग्वेज, करेक्ट. सो सिमिलरली if I look at Python as a language and if I have to pick कि Python में कौन सा फीचर सबसे अच्छा है, so for me that is a list. List feature is something that makes Python as a language very powerful. क्योंकि लिस्ट प्रोसेसिंग जो होता है, जिसको पाइथन के टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, that it provides you with such a great functionality that you can't even imagine things happening so fast in such a low or very less code. तो बहुत कम कोड लिखना पड़ता है आपको, लेकिन आपका टाइम बहुत सेव होता है और बहुत फास्ट ये प्रोसेसिंग कर लेता है. ओके, सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ what you will do with the help of these data types. Okay, and typically the list टपल लिस्ट जैसा ही होता है. डिफरेंस होता है कि टपल में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लिस्ट में मॉडिफाई कर सकते, बस उतना ही डिफरेंस है. और डिक्शनरी थोड़ा अलग टाइप का होता है. विल सी दिस लेटर टाइप्स लेटर ऑन. ओके, द बेसिक वंस आर समथिंग दैट वी विल यूज फॉर सम बेसिक प्रोग्राम्स एंड देन विल मूव ऑन टू दिस प्रोग्राम्स लेटर ऑन. ऑलराइट, so this is the general categorization, and now what we are going to see is we are going to write some program and we are going to see how we can use these different data types there itself. All right, so I'll move back now to our idle. I'll clear this, okay, because we don't need it. And first thing that I'm going to show here to you is, let me show you some values. So I'm going to say x is equal to 10, y is equal to, let's say 75.50, okay, and z is equal to, imagine this, that India. Okay, so if I show you x, y and z, you can see the three values. ये हमने already करके देखा है. Okay, we have done this, we have seen this, how it behaves, what exactly this is, right? Fine. लेकिन मैंने क्या बोला, जब आप ऐसे लिखते हो x is equal to 10, पाइथन क्या करता है, पाइथन ये वेरिएबल को उसका जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है. ओके, उसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस. क्या बोला जाता है उसको? टाइप इन्फरेंस. यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट दिस इज कॉल्ड एज टाइप इन्फरेंस. मतलब क्या? पाइथन्स एबिलिटी टू, टाइप इन्फरेंस मतलब क्या होता है? टू इन्फर अ टाइप और अ वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू. ऑलराइट, बेस्ड ऑन द वैल्यू. तो इसका एक एग्जांपल क्या हो गया, जब मैं बोलता हूँ x is equal to 10, what Python will do, Python will look at this value, Python will look at this value and then think, oh ये 10 है, मतलब ये क्या है, ये इंटीजर लगता है. ऑल राइट, तो फिर पाइथन क्या करता है ना, x वेरिएबल का टाइप दे देता है इंटीजर. ऑल राइट, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे मैंने ऑलरेडी लिखा था, y is equal to let's say 90 point whatever 50. If I do this, ऑलराइट, अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन अब उसकी वैल्यू चेक करेगा कि यूजर उसमें क्या स्टोर करना चाह रहा है. पाइथन विल सी इट एंड देन पाइथन गेट्स टू नो कि अरे 90.50 वैल्यू स्टोर करना है. अच्छा, मतलब ना यूजर को फ्लोट टाइप चाहिए, तो फिर वो इसको ना, मतलब डेसिमल वाला फ्लोट जिसको बोलते हैं, तो इट विल एज्यूम दैट ओके देन द टाइप ऑफ वाई शुड बी फ्लोट. प्लीज रिमेंबर, यही चीज हमको सी लैंग्वेज में करनी होती है, तो हमको बोलना पड़ता है इंटीजर x is equal to 10, ऐसे बोलना पड़ता है. Are you getting this? Integer x is equal to 10, ऐसे specifically we have to tell. We don't have to tell that in Python, we just have to tell x equal to 10, that's it. Python will do the type inference, meaning वो automatically देख लेगा कि उसमें क्या स्टोर करना है और उसका डेटा टाइप क्या देना है. Okay, now the important thing, obviously when we use these things, then we are very much curious to know कि okay अगर ऐसा है, ओके अगर ऐसा है, बाय द वे मैं यहाँ पे और एक चीज भी लिख देता हूँ, XYZ हो गया, और लेट्स से J एक बोल देता हूँ मैं, सो J would be 5 plus whatever 7J which is a complex number.
ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ऐसे 5 + 7j करके उसको प्रिंट कर देगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन। नाउ यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, x, y, z एंड j। ऑलराइट, नाउ आई वांट टू सी देयर डेटा टाइप। ओके, मुझे ये जानना है कि इनका डेटा टाइप है क्या। अमित सर आप तो बोल रहे हो कि पाइथन ऑटोमेटिकली कर लेगा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे देखना है, आई वांट टू सी कि व्हाट इज देयर डेटा टाइप। ओके, इफ यू हैव टू check data type of any of the Python variable, okay, if you have to check the data type of any of the Python variable, then what do you do is, okay, what do you do is you use a method or rather a function called as type। आपको टाइप देखना है ना उसका, आपको क्या जानना है, टाइप। ओके, मतलब हम बोलेंगे कि हमको डेटा टाइप जानना है, बट यस अल्टीमेटली टाइप ही हो गया ना वो। तो आप लोग क्या बोलोगे, टाइप और वेरिएबल का नाम। So you will say type X. You will hit enter and observe उसने क्या दिखाया, उसने यहाँ पे बोल दिया class int। ओके, अब जिन लोगों को C++ आता है, जावा आता है, उनको क्लास समझ में आएगा। फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट अ क्लास इज राइट नाउ, उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। ओके, तो जिनको C++ या जावा आता है, दे विल नो व्हाट अ क्लास इज। जिनको नहीं आता है, दे डू नॉट फोकस ऑन दिस वर्ड, ओनली फोकस ऑन दिस जो यहाँ पे दिया है, int। int stands for integer। तो ऐसे ही अगर हम लोग बाकी के टाइप्स देखना शुरू कर दें, व्हाट इज द टाइप ऑफ y, इट इज फ्लोट। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ z, इट इज str। str बोले तो स्ट्रिंग। व्हाट इज द टाइप ऑफ j, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, सो दिस विल गिव यू एन आइडिया, this will give you an idea that what are the different types available। these are not the only types, by the way, ये तो मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूँ। we will see the different types later on। अभी right now we don't need it। all right, okay, please go on mute। okay, all right, मैंने जाके म्यूट कर दिया। anyways, तो यहाँ पे you can see that it is showing us the various classes। okay, what a class is, don't worry about that, focus on the type, integer। okay, तो ये क्या हो गया, int का मतलब हो जाए integer। ये float का मतलब तो float ही होता है, by the way, it's a decimal value। str का मतलब होता है string value। complex number, वो जो टाइप है उसका क्या होता है, मतलब complex number। okay, so these are the various types that are available, not all of them, not all of them। for example, एक और एक चीज कर देता हूं मैं यहाँ पे, so it will be very clear to all of us। यहाँ पे मैं बोलता हूँ result is equal to true and then I said type result। तो ये इसका क्लास bool दिखाएगा, which is nothing but a boolean value। okay, so I'm going to put this in that section as well। so we're going to say copy, we're going to come here and say paste and I'll add it here। all right, so point ye hai, the important point here is that okay, we can give values to these different variables। all right, we can give values to these different variables and we can actually see their types as well। all right, जैसे कि यहाँ पे x का टाइप इंटीजर देख लिया, y का फ्लोट देख लिया, सो ऐसे हम लोग टाइप भी यूज कर सकते हैं। और ये टाइप हम लोग सिर्फ यहाँ से यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं, मीनिंग फ्रॉम द शेल, ये हम प्रोग्रामेटिकली भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज जस्ट अ फंक्शन। ऑलराइट, तो लेट्स मूव ऑन हियर, लेट्स मूव ऑन हियर एंड ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया ना आपको वेरिएबल्स कैसे हैं। अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर, क्योंकि वो चीज हमको सबसे पहले करनी पड़ती है ना। इन एनी प्रोग्राम द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, in any program the first thing that we need to do is read some data from the user। that's what we typically do। all right,
So the same thing we are going to do here. We are going to read some value from the user. All right. और वही चीज हम यूजर को फिर से प्रिंट करके दिखा देंगे. All right. Now उसके लिए हमको एक मेथड यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है इनपुट. So method मतलब function. Input function is used to read data from user. Okay, input function is used to read data from user. और एक important चीज, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ important चीज. अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ इनपुट देख लेंगे. तो यहाँ पे मेथड का नाम है इनपुट. ऑलराइट. और इनपुट में एज अ पैरामीटर आप एक टेक्स्ट भेज सकते हो जो यूजर को दिखेगा. मतलब कैसा, अगर आपको यूजर को बोलना है एंटर अ नंबर, तो आप क्या बोलोगे, एंटर अ नंबर. तो ये मैसेज आप यहाँ पे दिखा दोगे. ओके. Those who come from C background, C is the basic language I'm assuming many of you know. नहीं आता है तो छोड़ दो, लेकिन जिनको आता है they know. If you want to print a message to the user saying enter number, you'll have to use a combination of two function calls. Function call one would be printf, enter a number, and second function call would be scanf. So print is for printing, scan is for reading the value. Python में ऐसा नहीं है. Python में आप input function use करते हो which is there to read the value, और उसी में आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो जो आपको यूजर को दिखाना है. तो यहाँ पे आई कैन से एंटर अ नंबर. दिस इज समथिंग आई कैन से. नाउ व्हेन इनपुट इज अ फंक्शन, राइट. अब फंक्शन जब भी कुछ रीड करेगा तो वो रिटर्न करेगा ना. तो मुझे ऐसे लिख के चलेगा नहीं. व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गिव अ वेरिएबल समवेयर. सो आई हैव टू से x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर. ऑलराइट. नाउ व्हेन यू से x इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, after that what you can do is you can just say print x. मतलब जो यूजर से हम लोग रीड कर रहे हैं ना, वही यूजर को बाद में प्रिंट करके दिखा रहा है. So we are reading a value and we are printing the value directly. All right. So what I'll do is I'll run this program and you will see here. Okay. I'll say run and यहाँ पे आपको दिखेगा कि it is saying, it is asking me enter number. I enter number 77 and I hit enter and then it is showing me 77. All right. So जो मैंने उसको एंट्री दे दिया उसने उसको प्रिंट कर दिया. फाइन. अब मैं फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको. अरे यार ये मेनू क्यों चेंज हो रहा है. ओके. एंटर नंबर और इसमें मैंने बोल दिया अमित. ओके. नाउ जस्ट ऑब्जर्व, एंटर नंबर बोला था लेकिन इसमें मैंने बोल दिया अमित और एंटर हिट किया तो वो अमित दिखा रहा है. अरे ये कैसे चल रहा है. कोई भी इनपुट दे दूं मैं, वो कैसे रीड कर रहा है. बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ नंबर बट व्हाइल एज द यूजर इज गिविंग मी अ टेक्स्ट, this should not be working. ये ऐसा नहीं allow करना चाहिए. Okay. So remember that when we are talking about input function, an important note here, input function will always read data in form of text, जिसको हम बोलते हैं string. तो input function से आप जो भी read करते हो ना, वो आपको हमेशा टेक्स्ट में ही मिलता है. ऑलराइट. एंड दैट इज द रीजन हमने जब यहाँ पे प्रोग्राम रन किया तो व्हेन आई एंटर्ड अमित इट प्रिंटेड मी बैक अमित. व्हेन आई एंटर्ड 77 इट प्रिंटेड मी बैक 77. ओके. क्योंकि इसने इसको स्ट्रिंग करके ही एज्यूम किया है, लेकिन हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं दिया, इसलिए इसने सिंगल कोट लगा के नहीं दिखाया हमको. ओके. ओके. सो हियर लेट मी शो you one thing before we proceed ahead and fix this problem. I'll print the type of x. मैं एंटर नंबर तो बोल रहा हूँ, यूजर से नंबर ले भी रहा हूँ इनपुट में, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि उसका टाइप प्रिंट कर एंड देन वो नंबर भी प्रिंट कर. एंड नाउ I run this and see what will happen. Okay, I give the input as 77. It is telling me that it is a string and it is showing me 77. हाँ, डिफरेंस ये है कि जब मैंने ये नंबर दिया ना तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाया था, इसलिए वो सिंगल कोट करके नहीं डिफाइन कर रहा है. मतलब अगर मैं इसको रन करता हूँ ऐसे कैसा, and if I give a single quote for 77, then it will show it in single quote. All right. So here the important point is to understand that irrespective of what you are entering, it always reads it as a string.
and this is not what we need. Okay, this is something that we are not going to use. All right, तो मुझे तो नंबर चाहिए था, राइट, सिंपल नंबर. तो फिर how will I fix this? So just remember that this input is going to read it as a string, लेकिन हमको इसको ना कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट किस में करना है? इंटीजर में. So if you want to do that, you'll have to use typecasting. Okay, what you'll have to use? You'll have to use typecasting. तो हमको बोलना पड़ेगा integer and this. All right, so I'm saying here integer, and in that I'm saying input enter number. Okay, इसका मतलब जो भी input user से read किया जाएगा, the program will convert it into an integer only. Okay, I'll run it now and I'll show you the output. Now observe what happens. I give the number as 77. I hit enter, and you will observe the class string has been converted, or rather it is no more considering this to be a string. It is considering this to be a integer. It is converting it into an, sorry, it is not converting, it is considering it to be an integer. समझ में आ गया? तो जब भी आपको, बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि आपको यूजर से अगर अलग अलग टाइप के वैल्यूज रीड करने हैं तो आपको उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको यूजर से स्ट्रिंग ही रीड करना है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो वैसे भी स्ट्रिंग ही रीड करता है. Okay, what I'm trying to say here is, if you are going to read, imagine this, if you are going to read a name from the user, आपको बोलना है यूजर को प्लीज एंटर योर नेम, ऐसे बोलना है, करेक्ट. अब वो तो इनपुट फंक्शन से डायरेक्टली हो जाएगा विदाउट टाइप कास्टिंग. क्यों? क्योंकि वो वैसे भी स्ट्रिंग वैसे ही रीड करता है, उसका डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग ही है, तो वी डोंट हैव टू टाइप कास्ट इट. All right, and I'll show you a demo of that only now so that it will be very much clear to us. Fine. Before moving ahead, one important point I'll like to mention, that comments in Python. Okay, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका जो हम कोड लिखते हैं, whenever we write a source code, all the programming languages provide us with a functionality of writing comments. All right, जैसे C में अगर देखा होगा तो आपने C में हम लोग ऐसे लिखते हैं comments, करेक्ट, या C++ में या जावा में हम लोग ऐसे लिखते हैं. All right, so in Python we can write a comment, a single line comment using a hash. All right, so this is a comment in Python. और comments क्यों लिखने होते हैं guys? Because comments are very important. हम लोग IT में जब लोगों का रिव्यू करते हैं ना कोड का, हम हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, that people are not good at writing comments. Okay, and comments are very very important simply because that gives a readability to the code कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो. Okay, you don't have to write comment just for the sake of it, but जहाँ पे भी meaningful लगता है वहाँ पे comments लिखने चाहिए. All right, तो यहाँ पे एक simple comment मैं ऐसे ही लिख देता हूँ testing के लिए. So my first demo in Python, whatever. All right, now यहाँ पे what I'm going to do is, okay, एक काम करना है मुझे, ठीक है, एक चीज करते हैं हम लोग यूजर से ना एक रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ऐसी तीन चीजें रीड करते हैं और वही चीजें प्रिंट करके दिखा देते हैं यूजर को एज इट इज. फाइन, सो आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दिस एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग नंबर आई विल से एंटर अ रोल नंबर. ऑलराइट, वो मैंने स्टोर कर दिया, लेट्स से आर, बिकॉज रोल नंबर के लिए आर. फिर नेम रीड करना है तो आई विल से नेम. अब यहां पे मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, एंटर योर नेम. एंड देन मार्क्स के लिए मैं बोलूंगा, मार्क्स के लिए मैं क्या बोलूंगा, सी, इनपुट एंटर योर मार्क्स. ठीक है, या फिर व्हाटएवर, एक काम करता हूँ, योर निकाल देता हूं मैं, एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर मार्क्स, सिंपल लिख देते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ये तीनों चीजें वैसे की वैसे ही प्रिंट करनी है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स. ऑलराइट, अब एक चीज आपको ध्यान में आ गई होगी, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है.
So can you guys tell me what is the mistake? So it is a question to all of you. जो भी ध्यान दे रहे हैं, जिनको भी पॉसिबल है टाइप करना, मोबाइल से देख रहे हो तो शायद टाइप करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो यस आई हैव रिसीव्ड एटलीस्ट वन आंसर. ओके, सेमीकोलन का तो गलत हो गया. सेमीकोलन स्वप्निल इज नॉट नीडेड, सो वी डोंट केयर अबाउट सेमीकोलन. यस, सो द अदर आंसर्स दैट पीपल गिव आर करेक्ट. मार्क्स के लिए आपने डेटा टाइप नहीं बताया है. एब्सोल्युटली राइट. ओके, एंड यस करेक्ट. तो टाइप कास्टिंग फॉर मार्क्स इज नॉट मेंशन. एब्सोल्युटली राइट. सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने इंटीजर बोला है, तो यू आर करेक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम. बट हम लोग इंटीजर नहीं करेंगे, हम लोग उसको जानबूझ के फ्लोट में करेंगे, तो हमको और एक डेटा टाइप का समझ में आ जाएगा. ओके, सो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो एवरीवन गेव द राइट आंसर that we should be doing a typecasting for marks. Okay, now this should make it clear because no one said कि name के लिए typecasting नहीं किया अमित सर आपने. All right, and this gives me an idea that okay, so you have understood that in case of a name we don't have to do typecasting क्योंकि उसका type ही वो है. Name होता ही है string, लेकिन पहले वाले केस में वैसा नहीं है, तो we do a typecasting. ये वाले केस में भी वैसा नहीं है, तो we do a typecasting. All right, now with this let's run our program. And we say run module. So it is going to ask me enter your roll number. I say 1, enter your name Amit, and marks I say 80.45. And then exactly the same output it is giving to me 1 Amit and 80.45. All right. So when I do this, when I'm printing this, you will observe that everything is printed on the new line. Correct, everything gets printed on a new line. तो जैसे 1 रोल नंबर अलग लाइन पे आ गया, अमित अलग लाइन पे आ गया, और मार्क्स अलग लाइन पे आ गए. All right, now imagine that I don't want it to be printed in this fashion. I want an output where it gets printed like this. 1 अमित और 80.45 ऐसे आउटपुट आना चाहिए मुझे. This is my expectation. Are you getting this? What is this? This is my expectation that I want the output to be on one single line. I do not want you to print it on separate lines. It should be only on one single line. All right. Now, if you have to do that, then you have to make slight modification to the print function. Print function को हमको slightly modify करना होता है. Okay. And what that modification would be is, just remember, when you print anything, by default वो end में /n लगा देता है. Okay, when you print anything, by default वो end में /n लगा देता है. /n is new line. जिनको पता नहीं है उनको मैं बोल देता हूँ. What is /n? /n stands for new line. Okay, and और मैंने क्या बोला था? Print adds /n at end. काम करता हूँ, इसको उठा देता हूँ मैं इस कमेंट को और यहाँ पे लिख देता हूँ, so it is readable. Okay, so print adds /n at कुछ तो गलत हो गया. Print adds /n at end. Okay, यहाँ पे खत्म, and /n stands for new line. Okay, then if you don't want a new line, specify what you want. तो आपको अगर न्यू लाइन नहीं चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि नहीं आप अलग अलग लाइन पे उसको प्रिंट मत करो, तो फिर आपको एंड में क्या चाहिए वो बोलना पड़ता है. ऑलराइट, तो आपको क्या बोलना पड़ता है? मैंने अभी क्या बोला? एंड में जो चाहिए वो. ओके, एंड यू कैन स्पेसिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ अ पैरामीटर हियर व्हिच इज अ नेम्ड पैरामीटर जिसको बोला जाता है एंड. ओके, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको /n, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको /n, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको end is equal to /n. I execute this. आउट इनपुट में सेम दे देता हूँ तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे.
एग्जैक्टली सेम आउटपुट आया हमको, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या था, जब हमने पहले ये लिखा नहीं था ना, तो बाय डिफॉल्ट वो यही चीज ले रहा था। तो मैंने क्या बोला था, इट एड्स स्लैश एंड एट द एंड। यहाँ पे शायद मैं सिंगल कोट में बोल दूंगा तो अच्छा रहेगा, बिकॉज दीज आर नॉट टू सेपरेट कैरेक्टर्स। करेक्ट। सो दिस इज एज गुड एज एंड में क्या ऐड करना है। तो जब आपको न्यू लाइन चाहिए होता है विच इज स्लैश एंड, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं लिखा, इसलिए वो ऐसे एज्यूम करता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक अ चेंज हियर एंड से comma, comma and comma. And now if I run this and if I say run module, okay, सेम इनपुट देता हूं मैं आपको, मतलब कि वो हमेशा हमको समझ में आएगा। नाउ डू यू सी आउटपुट कैसे है, 1 कॉमा अमित कॉमा 80.45 कॉमा, अरे ये तो गलत आ गया कॉमा, करेक्ट। सो ऑब्वियसली यू नो दैट जो लास्ट वाला प्रिंट है उसमें हमको नहीं चाहिए ये, उसमें स्लैश नहीं चाहिए, बस हो गया। ओके, तो इसको मैं निकाल देता हूं। दिस इज हाउ यू विल फिक्स योर प्रोग्राम। ऑलराइट, तो यहाँ पे एल से 1, यहाँ पे एल से अमित, यहाँ पे एल से 80.45 आ गया जैसे मुझे चाहिए था। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी बोला था, आपने तो बोला था स्पेस चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड में हम वो कैरेक्टर बोल देंगे जो हमको चाहिए। सेम चीज आई एंटर, आ गई स्पेस। आ रहा है समझ में? ओके, अगर हमको कोलन चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोलन डाल देते हैं तो वो वैसे दिखेगा। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू प्रोवाइड एज अ वैल्यू, तो वैसे दिख जाएगा। Okay, so this is a very important concept to understand, that in Python whenever we use a print function, then at the end it will always add a slash n which happens to be a new line character, मतलब go to a new line. If you don't want that, then you specify कि आपको end में क्या चाहिए। Okay, you can very well say a space, a comma, a dash, a colon, whatever you want. All right, fine. So yeah, so this is what we discussed today, that we understood what a data type is, what are various data types basically. We haven't touched based on all, हमने सब के बारे में नहीं देखा है, बट फाइन, जो बेसिक चाहिए हमको इंटीजर्स और स्ट्रिंग, उसके बारे में तो हमने देख लिया है, हाउ टू एक्सेप्ट देम। नॉट व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन वुड बी, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी सीइंग हाउ, अब देखो यहाँ पे तो हमको ये तो सीख गए कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे दिखाना है, वो तो सीख गए हम लोग, करेक्ट। सो एक मेजर काम हो गया। So in the subsequent scenarios, in the subsequent sessions, what we are going to learn is now, we'll learn to do the processing on this, कि we read a number from the user, फिर वो check किया पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो चेक करने के लिए if else लगेगा। तो we are going to see what an if else is। फिर कुछ ज्यादा नंबर्स लेने हैं तो उसके लिए हमको लूप लगाना पड़ेगा, तो at that time we are going to discuss what a loop is। All right, so we'll start building programs over this now। Fine. Okay, so I hope this is clear to all of you, whatever I discussed today. Now we still have got 4 minutes to end the session, so I can take your queries. In case you have any queries, you can put it into the chat window. All right, so right now I'm going to stop the recording for this. Okay, sharing में on रखता हूँ, but I'll just stop the recording.